کراچی میں سانحہ 12 مئی کا ٹریلر، متحدہ کارکنوں کا کراچی میں ARY نیوز کے آفس پر دھاوا، توڑ پھوڑ، پولیس وین اور موٹر سائیکلیں جلا دیں، ہوائی فائرنگ، شیلنگ اور پتھراؤ، ایک شخص جاں بحق، کئی زخمی، ملیر میں بھی گولیاں چل گئیں۔ کراچی میں متحدہ کا بھوک ہڑتالی کیمپ اکھاڑ دیا گیا، وزیر اعلیٰ اور DG رینجرز نے شرپسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی، جگہ جگہ سنیپ چیکنگ۔ کراچی کے علاقے صدر میں ہنگامے کے بعد مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم، گاڑیوں کی قطاریں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ARY نیوز کے دفتر پر حملے کی مذمت، شرپسندوں کی گرفتاری، صحافیوں اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم۔ متحدہ قائد نے ایک بار پھر رو سے مدد مانگی، مصطفیٰ کمال کا الزام، کہتے ہیں آج تک جو کچھ کہا MKM نے سچ کر دکھایا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، MKM جلاؤ گھیراؤ کر کے اپنا نقصان نہیں کر سکتی، کارکن ملوث ہوئے تو سخت کارروائی کریں گے، متحدہ رہنماؤں کا رد عمل۔ مایوسی کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ جو کنٹینر پہ چڑھنے والے وہ اور بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹ دیا ہے، بھئی کسی کو ترقی کا مینڈیٹ دیا ہے، کسی کو سڑکیں بنانے کا مینڈیٹ دیا ہے، اور کسی کو سڑکوں پہ آنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ کنٹینر والے بیٹھ جائیں گے، عوام نے فساد کی سیاست مسترد کر دی، وزیر اعظم سیاسی مخالفین پر برس پڑے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے منصوبے کا سنگ بنیاد۔ احتساب کے نام پر قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، حمزہ شہباز کا پنڈ دادن خان میں خطاب، NA 63 جیلوں کا ضمنی الیکشن، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر لیگی رہنما کو نوٹس۔ نیشنل ایکشن پلان کی پیش رفت میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ 20 میں سے 8 نکات پر کام انتہائی سست کیوں؟ صورتحال پر غور کے لیے عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس۔ اے زمین ساتھ آسمان ساتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم دشمنوں پر ہر ضرب کاری، آپریشن خیبر 3 کامیابی سے جاری، 40 دہشت گرد ہلاک، گولہ بارود برآمد، فورسز نے رات گل کی بلند چوٹیوں پر پوزیشن سنبھال لی۔ سانحہ کوئٹہ کے مبینہ حملہ آور کی تصویر جاری، ویڈیو دنیا نیوز پر، مشکوک شخص کون ہے پتہ نہ چل سکا، وکلاء کا پارلیمنٹ تک مارچ، 8 ستمبر کو یوم سیاہ کا اعلان۔ مودی کا بیان بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا واضح ثبوت، آزاد کشمیر میں یوم مذمت اور یوم سیاہ، شہر شہر ریلیاں، مقبوضہ وادی کے عوام سے بھی بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ کانگو کا ایک اور مشتبہ مریض کراچی کے جناح اسپتال میں داخل، آئسولیشن وارڈ اب تک قائم نہ ہو سکا، کوئٹہ میں مویشی منڈی لگ گئی، وائرس سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کے برابر۔ ایک دو دفعہ ڈاکٹر آیا تو اسپرے وغیرہ کیا تھا، پھر وہ چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ پہلے یہاں اتوار ہفتے کو بہت رش ہوتا تھا، گراکی ہوتا تھا، مگر کچھ دنوں سے گراکی بھی نہیں ہے یہاں پر اور کوئی خریدار نہیں نظر آیا۔ قندیل بلوچ قتل کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ، واردات کے وقت سعودی عرب میں مقیم بھائی اکرم کی پاکستان آمد کا انکشاف، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ پنجاب میں 165 بچے اب تک بازیاب نہ ہو سکے، اسٹیئرنگ کمیٹی کی رپورٹ میں تصدیق، وزیر اعلیٰ نے بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی، 10 دن میں رپورٹ تک۔ لاہور سے پراسرار طور پر لاپتہ 4 لڑکیاں راولپنڈی سے مل گئیں، سیر سپاٹے کا جی چاہا تو جھمکے بیچ کر نکل پڑی، لڑکیوں کا موقف بورسا کے حوالے۔
कराची के हुसैन हजारा गोट में बच्चे के मुबैना इकबाल कत्ल के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, मुकदमा दर्ज, 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेरेंट्स हैं जो वालिदैन हैं वो हर बच्चे के साथ अब सिक्योरिटी गार्ड बनकर घूमे, यानी स्टेट कहाँ पर है? यहाँ स्टेट नजर ही नहीं आती हमें कहीं। कराची के जोड़िया बाजार में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से इत्तफाकिया गोली चल गई, 5 अफराद जख्मी। 5 फायर की ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल गई, मुलजिम का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा जफर महमूद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नए सरबराह की तकर्री 2 रोज में किए जाने का इम्कान। 8 से 10 दिन में साफ सुथरा कराची चाहिए, वज़ीर आला सिंध का नया अल्टीमेटम। मुराद अली शाह कहते हैं अब सिर्फ बयानात नहीं, अमली काम भी होगा। कराची में डिग्रियां कोड़ियों के भाव, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जाली असनाद की लूट से 600 की फरोख्त, 162 बोगस। अहम अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। कराची में जो हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कराची वाकये से जुड़ी अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने डीजी रेंजर सिंध को फोन किया है और आर्मी चीफ ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत की है। आज कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक शख्स जान बहक हुआ जबकि 5 से ज्यादा जख्मी हुए। इस अफसोसनाक वाकये के बाद डीजी रेंजर सिंध जाए वक़ुआ पर पहुंचे, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध भी पहुंचे और अब अहम खबर यह है कि आर्मी चीफ ने डीजी रेंजर सिंध को फोन किया है और हिदायत की है कि इस अफसोसनाक वाकये में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को, तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत की है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने। अहम टेलीफोनिक राब्ता है जिससे मुताल्लिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने डीजी रेंजर सिंध को फोन किया है। आज कराची जलता रहा। कराची की फव्वारा चौक पर आज गोलियां चली, हवाई फायरिंग हुई। यही नहीं बल्कि कई लोग जख्मी हुए। मुत्तहिदा कायद का इश्तियाल अंगेज बयान और कराची में आग लग गई। मुत्तहिदा कारकुनों ने ARY न्यूज के ऑफिस पर धावा बोला। यही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए, तोड़ फोड़ हुई, हवाई फायरिंग हुई, पुलिस वैन, मोटरसाइकिल जला दी गई, शेलिंग और पथराव भी हुआ। इस अफसोसनाक वाकये में एक शख्स जान बहक हुआ है जबकि कई जख्मी हुए हैं। यह सूरत हाल रही कराची प्रेस क्लब से जब मुश्तइल अफराद मदीना मॉल पहुंचे। मुत्तहिदा कायद के इश्तियाल अंगेज बयान ने शहर में फिर आग लगा दी। सन है 12 मई का ट्रेलर भी चल गया। हंगामा, आराई, फायरिंग और तोड़फोड़ उस वक्त शुरू हुई जब प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप के शुरका अचानक मुश्तइल हो गए। फिर ज़ैनब मार्केट पहुंचे और ARY न्यूज के दफ्तर का घेराव कर लिया। हंगामा मचा तो प्रेस क्लब के करीब फव्वारा चौक की फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पूरा इलाका मैदाने जंग बन गया। पुलिस एहलकारों से असलहा भी छीन लिया गया। फायरिंग, शेलिंग और पथराव की जद में आकर SHO सदर और दुनिया न्यूज के रिपोर्टर फहद कमर समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिनमें से अयूब नामी शख्स अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिलें भी जला दी। शोले आसमान छूते रहे, धुएं के बादल दूर दूर तक देखे गए। पुलिस मौजूद थी लेकिन तमाशाई बनी रही। कितने गिरफ्तार किए? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, हम आपको एक तादाद बाद में बता देंगे। वैसे क्या आप अंडर कंट्रोल है सूरत हाल? बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। इनके कुछ लड़के हैं वो आ रहे हैं तो उनको अभी इंशाअल्लाह काफी कंट्रोल है। थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो ठीक कर देंगे अभी। तो कितनी गाड़ियां जली हैं अब तक? 2 मोटरसाइकिलें इन्होंने जलाई हैं, एक पुलिस की वैन को नुकसान पहुंचा है। तो आप समझते हैं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, लेकिन सब मुकदमात होंगे और सीरियस मुकदमात होंगे, सीरियस एक्शन होगा इनके खिलाफ। तोड़फोड़ और फायरिंग का सिलसिला थमने के बाद इमारतों में पनाह लेने वाले अफराद बाहर निकले तो पुलिस ने शेलिंग कर दी।
बदतरीन हंगामा आराई से सदर, ज़ैबुन्निसा रोड, अब्दुल्ला हारून रोड और आई चंद्रेगा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मज़ार कायद से टावर तक और कैंट स्टेशन से आने वाली सड़कों पर हजारों गाड़ियां फंस गईं। रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके में पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। तो यूं आज का दिन मीडिया के लिए एक और स्याह तरीन दिन साबित हुआ। कराची में मुत्तहिदा कारकुन ARY न्यूज के दफ्तर में घुस गए, मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया, शीशे तोड़ दिए, कैमरे, लैपटॉप और कीमती सामान तोड़ डाला। जी हाँ, आजादी सहाफत पर हमला किया गया है और इस तोड़ फोड़ में डंडा बरदार खवातीन भी किसी से पीछे न रहीं, जबकि फर्ज की अदायगी के दौरान एक कैमरामैन जख्मी भी हुआ। पाकिस्तान में मीडिया के लिए एक और स्याह तरीन दिन। कराची में हंगामा आराई के दौरान MQM के मुश्तिल कारकुन अचानक मदीना मॉल पहुंच गए और ARY न्यूज के दफ्तर पर धावा बोल दिया। दफ्तर के मरकजी गेट का जंगला तोड़ डाला और सिक्योरिटी अमले से असलहा छीन कर अंदर दाखिल हो गए। मुजाहिरीन ने ARY न्यूज के मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया, कमरों और केबिन्स में घुसकर कीमती सामान तोड़ दिया। तोड़ फोड़ में डंडा बरदार खवातीन भी पीछे न रहीं। हमलावरों के तशद्दुद से एक चैनल का कैमरामैन भी जख्मी हो गया। मुश्तिल अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर निजी TV चैनल्स की DSNGs की भी तोड़ फोड़ की। ये मुश्तिल कारकुन ऐसे ही हमला करने नहीं पहुंचे। MQM के भूख हड़ताली कैंप में आखिर क्या हुआ, अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये अंदरूनी कहानी सिर्फ दुनिया न्यूज के जरिए आप तक पहुंच रही है। कायद MQM फारूक सत्तार पर शदीद तनकीद करते रहे। MQM कायद ने फारूक सत्तार को बार बार क़यादत संभालने का भी कहा। वहीं साथ साथ इत्तलात ये भी हैं, ज़राए ऐसा बताते हैं कि MQM के कायद परवेज रशीद को कैंप पर न बुलाने पर बरहम हुए। फारूक सत्तार ने एक बार अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहा लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। आज हुआ क्या इस भूख हड़ताली कैंप में, जान लेते हैं नुमाइंदे दुनिया न्यूज किरण खान से। किरण, कहिएगा ये अंदरूनी कहानी क्या है? जी बिल्कुल, MQM की भूख हड़ताल का छठा रोज था और डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर जो रहनुमा जिनकी परवेज रशीद से मुलाकात हुई थी, जब वो कैंप में पहुंचे हैं उसके बाद MQM के कायद ने डॉक्टर फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तंज भी किए उन पर और सबसे ज्यादा बरहमी का इजहार इस पर किया कि परवेज रशीद कैंप पर क्यों नहीं आए और उसके बावजूद ये रहनुमा वहाँ पर मुज़ाकरात को मुस्बत कहते हुए वापस आ गए। ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त बनी जब इस वक्त जो है कारकुनान की तादाद काफी ज्यादा कैंप में अचानक से बढ़ गई थी और उसके बाद MQM के कायद ने मुख्तलिफ ARY समेत मुख्तलिफ TV चैनल्स को तनकीद का निशाना बनाया, मनफी बातें की, जिसके बाद मुजाहिरीन जो थे वो मुश्तिल हुए और उन्होंने ARY न्यूज पर हमला कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया किरण खान। वेलकम बैक। आपको ये खबर दें कि न सिर्फ ये जो आज कराची में हमला हुआ उस पर सबने मजम्मत की है, बल्कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुत्तहिदा कायद कराची की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार है। उनका कहना है कि उन्होंने एक बार फिर से रॉ से मदद मांगी, मैंडेट का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची में जो कुछ हुआ उनकी कही एक एक बात सच साबित हुई। आज फरमाया उन्होंने कि जिस दिन रो खुलूसे नियत खुलूसे दिल के साथ मेरा यानी अल्ताफ हुसैन का कोट अनकोट कह रहा हूं साथ दे दे तो पाकिस्तान में एक भी फौजी नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान को वो आर्मी रेंजर्स फौज से खाली करा लेंगे। 3 मार्च से लेकर आज के दिन तक हम जो कहते चले आए, जो बोलते चले आए, एक एक जुमले को, हमारी एक एक बात को आज उन्होंने सही साबित कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हालात खराब करने वालों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप मानेंगे बात तो हमसे कहते हैं सबूत लाके दो। सबूत जबकि आपके अपने पास हैं, उनके अपनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। PSP के सरबराह ने कहा कि हंगामा आराई में जाँ बहक शख्स के घर वालों से ताज़ियत करते हैं।
और अब बात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज लाहौर सियालकोट मोटरवे का संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कंटेनर पर चढ़ने वाले बैठ जाएंगे, अवाम को फसाद की सियासत मुस्तरद करना होगा। मुल्क में दहशतगर्दी आखिरी सांस ले रही है। उन्होंने 2018 को लोड शेडिंग के खात्मे का साल करार दे दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लाहौर सियालकोट मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। उन्हें मंसूबे की ब्रीफिंग दी गई। खिताब में उन्होंने कहा, हम कंटेनर पर चढ़े हैं मगर कंटेनर की सियासत नहीं कर रहे, ये तरक्की और खुशहाली का कंटेनर है। आपका ये जज्बा देखकर वो जो कंटेनर पे चढ़ने वाले वो और बैठ जाएंगे। हम कंटेनर पे तो चढ़े हुए हैं लेकिन कंटेनर की सियासत यहाँ पे नहीं हो रही। वजीर आजम का कहना था, अवाम ने फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी, खुशहाली पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान को खुशहाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोटरवेज बना रहे हैं, पाकिस्तान की बिजली की किल्लत को खत्म कर रहे हैं, लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे हैं। इनको अगर मजीद 2 साल मिल गए तो पाकिस्तान बड़ा खुशहाल हो जाएगा, हमारा चांस मारा जाएगा। इसलिए आपका इंतखाब अगर इस्तेकाम है तो फिर आपको फसाद की सियासत को मुस्तरद करना है। वजीर आजम ने ऐलान किया, 2018 लोड शेडिंग के खात्मे का साल होगा और आवाम को न सिर्फ बिजली बल्कि सस्ती बिजली मिलेगी। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना था, जब आवाम के पास जाएंगे लोड शेडिंग माजी का हिस्सा बन चुकी होगी। 43 अरब रुपए लागत से 89 किलोमीटर तवील मोटरवे को काला शाह काकू के करीब M2 से मिला दिया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल